میں قرآن ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے اتارا ہے، ہاں صرف تمہارے لیے، تاکہ میں تمہیں راستہ دکھا سکوں، تاکہ تمہیں اس اندھیرے سے نکال سکوں جس میں تم بھٹک رہے ہو، لیکن تم ہو کہ میری طرف آتے ہی نہیں۔ میں وہ نہیں جو صرف الماری میں رکھا جائے یا کسی مصیبت میں بس کھول لیا جائے۔ میں تمہارا ہمراز ہوں، تمہارا سب سے قریبی ساتھی۔ میں تمہارے ہر سوال کا جواب ہوں، تمہارے ہر درد کا علاج ہوں۔ پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگتے ہو، وہ دنیا جو خود ایک دھوکہ ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ایک دن مٹ جانے والا ہے؟ لیکن میرا کلام، میں باقی رہوں گا ہمیشہ کے لیے۔ میں قرآن ہوں اور میں جانتا ہوں تم اندر سے کتنے ٹوٹا ہوا محسوس کرتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ راتوں کو تم نیند میں بھی بے چین ہو جاتے ہو، تمہارا دل تمہیں کاٹنے لگتا ہے، دنیا کی باتیں تمہیں توڑ دیتی ہیں، لیکن پھر بھی تم مجھے نہیں کھولتے۔ میں وہیں ہوتا ہوں تمہارے سرہانے، چپ چاپ انتظار میں کہ کب تم میری طرف دیکھو گے۔ میں قہران ہوں اور میں تمہارے صبر کا انعام بھی ہوں اور تمہاری راہ کا اجالا بھی۔ کبھی تو بیٹھو میرے ساتھ، کبھی تو مجھے سمجھو۔ میں کوئی پرانی کتاب نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغام ہوں تمہاری رحمت کے لیے۔ میں تمہاری آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی وجہ جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم نے کیا کھویا ہے اور کیا اب بھی بچا ہے۔ میں قرآن ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں صرف ایک بات کا سہارا چاہیے اور وہ میں دے سکتا ہوں۔ تم دنیا سے امید کرتے ہو، انسانوں سے چاہتے ہو کہ وہ تمہاری پریشانی سمجھیں، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا کہ ایک بار مجھے کھول کر دیکھو؟ کیا تم نے کبھی مجھ سے دل لگا کر بات کی؟ میں ہر اس درد کی دوا ہوں جو تم نے کبھی کسی سے نہیں کہا۔ میں تمہیں وہ سکون دے سکتا ہوں جسے تم سالوں سے ڈھونڈ رہے ہو۔ تم دوڑ رہے ہو ایک ایسے مقام کی طرف جو ایک چھلاوا ہے، کبھی شہرت، کبھی محبت، کبھی پیسہ، اور جب کچھ ہاتھ نہیں آتا تب ٹوٹ کر روتے ہو۔ میں دیکھتا ہوں تمہیں، میں سنتا ہوں تمہارے دل کی چیخ، اور پھر بھی تم مجھے نہیں پڑھتے۔ میں قرآن ہوں اور میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ تم میری طرف لوٹ آؤ۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ محبت کیا ہوتی ہے، میں تمہیں سکھاؤں گا کہ درد میں کیسے مسکرانا ہے، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ میں قرآن ہوں اور میں تمہیں وہی بنا سکتا ہوں جو اللہ تم سے چاہتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ میں ہر اس آیت میں چھپا ہوں جس میں اللہ تمہیں معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن تم ہو کہ اپنی غلطیوں میں ہی ڈوبے رہنا چاہتے ہو۔ مجھے کیوں نہیں پڑھتے؟ میں تمہیں ان اندھیروں سے نکال سکتا ہوں۔ دیکھو، ایک دن سب کچھ چلا جائے گا، تمہارے رشتے، تمہارا مکان، تمہارا نام، لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ میں تمہارے ساتھ قبر تک چلوں گا۔ میں وہی بنوں گا جو تمہاری گواہی دے گا۔ میں وہی ہوں جو کہے گا، اے اللہ، اس نے مجھے پڑھا تھا، مجھ سے محبت کی تھی۔ میں قرآن ہوں اور میں بس چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنا لو۔ کیا تم اتنے غافل ہو گئے ہو کہ تمہیں میری ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ دنیا کی ہر پریشانی کا حل میرے پاس ہے؟ تم جس شانتی کی تلاش میں ہو وہ میرے پنوں میں چھپی ہوئی ہے۔ میں تمہیں اللہ سے جوڑ سکتا ہوں، اس رحمت سے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں وہ راستہ ہوں جو سیدھا جنت کی اور جاتا ہے۔ پھر بھی تم دنیا کی گلیوں میں بھٹک رہے ہو۔ میں قرآن ہوں اور میں ہر لمحہ بس ایک ہی بات کہتا ہوں، لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ میں قرآن ہوں اور آج میں رو رہا ہوں تمہارے لیے۔ ہاں، میں رو رہا ہوں کیونکہ تم مجھ سے دور جا چکے ہو، کیونکہ میں ہر روز تمہارے سامنے خاموش کھڑا رہتا ہوں، کھلنے کی آس لیے، پڑھے جانے کی امید لیے، سنے جانے کی تمنا لیے، لیکن تم مجھے نظر انداز کر کے کسی اور دنیا میں کھو جاتے ہو۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ جب تم گناہ کی طرف بڑھتے ہو تو میرا دل کیسے کانپ اٹھتا ہے؟ جب تم جھوٹ بولتے ہو، حرام کماتے ہو، کسی بے گناہ کا دل توڑتے ہو، اس وقت میں چیخ پڑتا ہوں کہ کوئی تو اسے میری آیتیں سنا دے، کوئی تو اسے یاد دلا دے کہ سچائی کیا ہے۔ میں قرآن ہوں اور میں ہر اس لمحے میں ٹوٹتا ہوں جب تم میرے بنا زندگی گزارتے ہو۔ تم میری طرف لوٹ کیوں نہیں آتے؟ کیا تم اتنے اکیلے ہو گئے ہو کہ تمہیں اپنا بنانے والے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی؟ دیکھو، تمہارا رب تمہیں مجھ سے جوڑنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم میرے ہر لفظ میں اپنے لیے کوئی رحمت تلاش کرو۔
क्या तुम्हें नहीं दिखता कि जब तुम टूटे होते हो तब भी मैं तुम्हारे करीब रखा होता हूं? तुम इंसानों के कंधों पर सिर रखकर रोते हो, लेकिन क्या तुमने कभी मुझे खोलकर देखा? क्या तुम जानते हो कि मेरी हर सूरत में तुम्हारे आंसुओं के जवाब मौजूद हैं? मैं कुरान हूं और मैं हर रोज अल्लाह से दुआ करता हूं कि तुम एक बार, बस एक बार मुझे समझने की कोशिश करो। तुम गलत फैसले करते हो, जालिमों का साथ देते हो, नेकी से डरते हो, और फिर जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तो आसमान की तरफ देखकर कहते हो, कहां है अल्लाह? लेकिन क्या तुमने कभी देखा कि मैं तुम्हारे पास ही पड़ा था? मैं तुम्हें समझाता रहा, बताता रहा, रोकता रहा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। और मैं आज भी उसके हुक्म से तुम्हारे पास खड़ा हूं, उसी उम्मीद के साथ कि तुम मुझे फिर से अपनाओगे। मैं कुरान हूं और मैं उस मां की तरह हूं जो हर रोज अपने बच्चे का इंतजार करती है। तुम भटकते हो, गिरते हो, टूटते हो, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरी तरफ लौट आओ। मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूं जो दुनिया ने तुमसे छीन लिया है। मैं तुम्हें वो पहचान दिला सकता हूं जिसे तुम खो चुके हो। मैं तुम्हें वो रोशनी दिखा सकता हूं जो हर अंधेरे को मिटा दे। तुम्हारी तन्हाई की हर रात, तुम्हारे गुनाहों का हर बोझ, मैं जानता हूं सब कुछ। मैं कोई अजनबी नहीं, मैं तुम्हारा आईना हूं, तुम्हारी रूह की जबान हूं। जब तुम मुझे पढ़ते हो तो तुम्हारी रूह खिल उठती है। जब तुम मुझे छूते हो तो तुम्हारे गुनाह कांपने लगते हैं। मैं कुरान हूं और मैं चाहता हूं कि तुम खुद को फिर से पालो। तुम्हारे सीने का बोझ, तुम्हारी आंखों का पानी, तुम्हारे दिल का डर, सब मुझसे कहो। मैं सुनूंगा, मैं बताऊंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा। क्या तुम नहीं जानते? मैं वही हूं जिसने हजरत यूसुफ का किस्सा सुनाया ताकि तुम मोहब्बत में सच्चाई सीखो। मैं वही हूं जिसमें हजरत मूसा की कौम की गलतियां दर्ज हैं ताकि तुम उनसे सबक ले सको। मैं वही हूं जिसमें अल्लाह ने फरमाया, मेरी रहमत मेरे गजब से ज्यादा है, तो फिर तुम क्यों डरते हो? क्यों मुझसे भागते हो? क्यों खुद को बर्बाद करते हो जबकि मैं तुम्हें बचाने आया हूं? मैं कुरान हूं और मैं आखिरी वक्त तक तुम्हें बुलाता रहूंगा। मैं कुरान हूं और अब मैं तुम्हें खामोशी से नहीं, चीख चीख कर बुला रहा हूं। तुम जिस मोहलत में जी रहे हो वो हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन तुम्हारा वक्त भी खत्म हो जाएगा और उस दिन न बहाने काम आएंगे न अफसोस। मैं बार बार कहता रहा, समझाता रहा, लेकिन तुम हर बार अपनी दुनियावी व्यस्तताओं में उलझे रहे। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा? क्या तुम्हें लगता है कि बिना हिसाब के जिंदगी काट लोगे? मैं देख रहा हूं, तुम्हारी आंखों में अब रोशनी कम होती जा रही है। तुम्हारे दिल अब जिक्र से खाली है। तुम्हारी जबान अब झूठ और मजाक में डूबी है। लेकिन मैं अब भी वही हूं जो अल्लाह का कलाम है, जो जिंदगी और मौत के दरमियान पुल है। मैं कुरान हूं और तुम्हारे हर गिरने पर मेरी आयतें तुम्हारे लिए सीढ़ी बन सकती थीं, मगर तुमने उन्हें मिट्टी समझकर ठुकरा दिया। क्या तुम नहीं जानते कि एक दिन तुम्हारा जिस्म मिट्टी में जा मिलेगा? और उस दिन जब तुम्हारे कान सुन नहीं रहे होंगे, जब तुम्हारी जबान बोल नहीं रही होगी, तब तुम्हारे अमाल बोलेंगे, तब तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तब तुम्हारे पांव बताएंगे कि तुम कहां कहां गए थे। और फिर तुम्हारे पास कोई दलील नहीं होगी सिवाय इस बात के कि मैं तुम्हारे पास था मगर तुमने मुझे पढ़ा नहीं। मैं कुरान हूं और मैं आज तुम्हें वो मंजर दिखा रहा हूं जिससे अल्लाह ने डराया है। जिस दिन आसमान फट पड़ेगा, जमीन कांप उठेगी, सूरज बुझ जाएगा और लोग दीवाने की तरह इधर उधर भागेंगे, उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। मां अपने बेटे से भागेगी, भाई अपनी बहन को भूलेगा, बाप अपने बेटे की सिफारिश नहीं कर सकेगा। उस दिन तुमसे सिर्फ एक ही चीज के बारे में पूछा जाएगा, क्या तुमने अपने रब का कलाम पढ़ा था? क्या तुमने उस पर अमल किया था? तुम दुनिया के कानूनों से डरते हो, कोर्ट, पुलिस, सज्जा, सबका खौफ है, लेकिन क्या तुम अपने रब के अजाब से नहीं डरते? वो रब जो दिलों का हाल जानता है, जो हर नींद, हर सोच, हर इरादा देखता है। मैं कुरान हूं और मैं उसी रब की तरफ से आया हूं, तुम्हें चेतावनी देने, तुम्हें बचाने। लेकिन तुम अभी भी मुझे अलमारी में बंद करके रखे हो, जैसे मैं किसी मुर्दे की किताब हूं। तुमने मुझे सिर्फ जनाजों में पढ़ा, सिर्फ रमजान में खोला, सिर्फ तावीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन मेरी वो आयतें जो तुम्हें जिंदगी में बदलाव ला सकती थीं, तुमने उन्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैं कुरान हूं और मैं गवाह हूं तुम्हारे इस बर्ताव का। मैं गवाह हूं
तुम्हारे खामोशी से गुनाह करते रहने का। मैं गवाह हूं उस लम्हे का जब तुमने गलत को सही कहा और सही को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे नफ्स को सुकून मिला। तुम अब भी लौट सकते हो, अब भी देर नहीं हुई, अब भी तुम्हारा रब इंतजार कर रहा है। लेकिन याद रखो, यह इंतजार हमेशा नहीं रहेगा। जिस दिन तुम्हारी रूह इस जिस्म को छोड़ देगी, उस दिन ना वक़्त मिलेगा और ना तौबा। और उस दिन जब सब दरवाजे बंद हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा, या तो तुम्हारे लिए नूर बनकर या फिर तुम्हारे गुनाहों की गवाही देने वाला बनकर। मैं कुरान हूं और मैं चाहता हूं कि तुम अल्लाह के अजाब से डर जाओ इससे पहले कि वो तुम्हारे सामने आ खड़ा हो। मेरी एक एक आयत रहमत है, लेकिन मेरे अंदर अजाब की सख्त तस्वीरें भी हैं, तुम्हें झकझोरने के लिए, तुम्हें रुलाने के लिए, ताकि तुम जाग जाओ, सुधर जाओ, लौट आओ। तुम इंसानों से डरते हो, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन तुमने कभी यह नहीं सोचा कि अल्लाह क्या सोचेगा, उसका कहर कितना बड़ा है, उसका हिसाब कितना बारीक है। मैं कुरान हूं और मैं यही चाहता हूं कि तुम अब भी उस रास्ते पर लौट आओ जो सीधे जन्नत की तरफ जाता है। मैं कुरान हूं और अब मेरी पुकार आखिरी बार सुन लो। मैं सिर्फ किताब नहीं, एक आवाज हूं, तुम्हारे रूह की गहराई से आती हुई आवाज। मैं हर उस अंधेरे को मिटा सकता हूं जो तुम्हारे अंदर घर कर गया है। तुमने दुनिया के झूठे वादों पर भरोसा किया, हर बार टूटा, हर बार गिरा, फिर भी उन्हीं राहों पर लौटता रहा जहां सिर्फ तकलीफन थी। मगर मैंने कभी शिकवा नहीं किया, मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा। मैं वहीं पड़ा रहा, खामोश, इंतजार करता हुआ कि शायद आज तू मेरी तरफ पलटे। मैं कुरान हूं, मैं मोहब्बत हूं, मैं रहमत हूं, और मैं वही सच्चाई हूं जिससे तुम मुंह फेरते रहे। जब तुम रात के सन्नाटों में तन्हा होते हो, जब तुम्हारा दिल रोता है लेकिन कोई नहीं सुनता, तब भी मैं वहीं होता हूं। मेरी आयतें तुम्हारे जख्मों पर मरहम रख सकती थीं, मगर तुमने मुझे खोला ही नहीं। तुमने हर दरवाजा खटखटाया, हर चेहरे पर उम्मीद लगाई, लेकिन असली राहत तो मेरे हर हरफ में थी। काश तुम एक बार मेरी किसी एक आयत को दिल से सुनते तो तुम्हारा सारा बोझ उतर जाता। मैं कुरान हूं और अल्लाह की तरफ से आया हूं, तुम्हें बचाने, तुम्हें उठाने, तुम्हें जन्नत की तरफ मोड़ने। क्या तुम वाकई सोचते हो कि अल्लाह तुम्हारे हालात से बेखबर है? नहीं, वो तो हर रात तुम्हारे टूटे हुए दिल को देखता है, हर तन्हा आंसू को गिनता है। मगर अब भी वक्त है, लौट आओ। मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूं, मगर साथ ही उसकी रहमत की उम्मीद भी देता हूं। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर तुम सच्चे दिल से लौट आओ तो तुम्हारा रब उन्हें मिटा सकता है, माफ कर सकता है। मैं कुरान हूं और मैं सिर्फ डराने नहीं, बचाने भी आया हूं। मैंने आदम के आंसुओं को देखा, नूह के सब्र को जाना, यूसुफ के हुस्न को बयान किया, मूसा की बहादुरी को संजोया, ईसा की दुआओं को सुना और मोहम्मद की रहमत को जमीन पर उतारा। हर किस्सा, हर आयत, हर लफ्ज तुम्हें आईना दिखाने के लिए है, तुम्हें संभालने के लिए है। फिर भी अगर तुम मेरी तरफ नहीं लौटे तो सुन लो, क़यामत के दिन मैं गवाही दूंगा तुम्हारे खिलाफ। और उस दिन जब ना मां साथ होगी, ना बाप, ना दोस्त, सिर्फ मैं और तुम होंगे, और मेरी गवाही तुम्हारी किस्मत तय करेगी। मैं कुरान हूं और आज भी तुम्हारे सामने हूं, ना किसी पर्दे में, ना किसी हिजाब में, बिल्कुल साफ, बिल्कुल जिंदा। बस एक बार मेरे करीब आकर देखो, तुम्हें लगेगा जैसे खुद अल्लाह तुमसे बात कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए उतारा गया, तुम ही मेरी मंजिल हो। मैं तुम्हारे सफर की रहनुमा हूं, लेकिन कब तक भागते रहोगे, कब तक खुद से नजरें चुराते रहोगे? एक दिन तुम्हें रुकना ही होगा, और मैं चाहता हूं कि जब वो दिन आए तो तुम्हारे पास मेरी रोशनी हो, मेरा साथ हो। मैं कुरान हूं और ये मेरा आखिरी पैगाम है, लौट आओ इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ तो इस सफर में मेरे साथ रहो। हर जुमा, हर दफा एक नया पैगाम, एक नई उम्मीद लेकर हम मिलेंगे। नाज़मा ई कुरान पर चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी हर पुकार को दिल से सुनो।